ہمارے کپڑے تو بھی آئے نہیں، ہمارے کپڑے تو سلے نہیں گئے ہیں۔ شہزادی کائنات نے فرمایا بچوں جا کے آرام کرو، صبح تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے۔ کیا کہا؟ صبح تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ اب یہ پاور دیکھیے، اس خاندان کا پاور دیکھیے، کہہ دیا اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا نہیں، پھر آپ نے مصلی بچھایا اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہی اور روتی رہی اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتی رہی۔ نہیں، شہزادی کائنات نے کہا اور کہنے کے بعد روزانہ کا معمول تھا پوری رات آپ کا عبادت میں رہنا، آج کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ شہزادی نے کہہ دیا۔ اب امام حسن فرماتے ہیں بھیا حسین ذرا امی جان سے پوچھو کپڑے تو ہمارے آئے نہیں ہیں، ناپا تو کسی ہے نہیں، کسی نے ہے نہیں، کون سا درزی لے کے آئے گا؟ لاؤ ذرا پوچھ لیا جائے۔ دعا کرتی ہے میرے آقا، ہمارے آپ کے آقا مولا حسین علیہ السلام نے فوراً فرمایا چلو بھیا، آپ کو پتا ہے اس خاندان میں کبھی کسی نے جھوٹ کہا ہے؟ اس خاندان میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ امی جان نے کہہ دیا مسئلہ حل ہو گیا، چلو آرام کرتے ہیں۔ شہزادے آرام کرنے لگے۔ پچھلی پہر کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ شہزادی نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آتی ہے بیوی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا لفظ تھا یار، خیاط والا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین۔ اگر جو حسنین کریمین کی ذات سے وابستہ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے اعلیٰ ترین اور کوئی القاب ہو نہیں سکتا۔ وہاں سے جڑ گیا بس جیسی کہنا خیاط الحسنین۔ شہزادی نے دروازہ کھولا، کپڑے لے لیے پردے کی اوٹ سے، دیوی کے سامنے آئی، پردہ لگا ہوا، پردے کی اوٹ سے کپڑا لے لیا۔ کپڑے دونوں سفید تھے، واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرات، کپڑے دونوں سفید تھے۔ کیوں سفید تھے بھائی؟ وہ اس لیے کہ جنت کی ساری چیزیں نور ہیں، وہاں کے کنکر پتھر بھی نور ہیں، سب سفید سفید ہے وہاں، تو کپڑا بھی سفید ہی آیا وہاں سے۔ دونوں کپڑے آ گئے شہزادوں کے اور ایک ہی سائز کے تھے، دونوں کپڑے لے لیے شہزادی نے اور اس کے بعد وہ حضرات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی شہزادوں نے کہا امی میرے کپڑے۔ جیسی شہزادی نے دونوں کپڑا شہزادوں کو دیا، فوراً شہزادوں نے کہا امی یہ سفید ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کون ہے یہ؟ آپ کہیں گے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جنت کے بھی سردار ہیں۔ اب یہ اپنی سرداری دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری سرداری یہی نہیں چل رہی بلکہ وہاں بھی چل رہی ہے۔ کیسے؟ حضرت آدم آئے تھے، بولو ایسے نہیں آئے تھے، رب کائنات نے دنیا میں بھیجا تھا تو کہا تھا آدم حوا اپنے کپڑے یہی چھوڑ دو، اب نیچے آپ ایسے ہی جاؤ۔ بولو جنت میں تھے، جنتی لباس کیے ہوئے تھے، لیکن رب کائنات نے جنتی لباس وہیں رکھوا لیا۔ لیکن آدم آئے تو وہاں کپڑا چھوڑ کے آئے، شہزادے یہاں کپڑا منگوا رہے ہیں جنت سے۔ سبحان اللہ۔ اب بلندی دیکھیے، بہت سے ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں، نام نہیں لیتا کسی بھائی کا، دوسرے قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ وغیرہ تمام انبیاء کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ بھیا یہی ایک بات یاد رکھیے آپ حضرات کہ انبیاء وہ ہیں جو جنت میں لباس چھوڑ کے آتے ہیں، یہ شہزادے وہ ہیں جو جنت سے لباس منگواتے ہیں۔ پاور بنا یا نہیں بنا؟ بہرحال جیسی شہزادوں نے کہا یہ سفید ہے مجھے اچھے نہیں لگتے، شہزادی پوچھتی ہے تو بیٹا کیا کیسا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ بھیا حسن کو ہرا چاہیے اور مجھے سرخ چاہیے۔ بھیا حسن کو ہرا چاہیے اور مجھے سرخ چاہیے۔ اب شہزادی کائنات سوچ میں پڑ گئی اور کہتی ہے اس کو ہرا اور لال کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا شہزادو چلے جاؤ مشکل کشا کے پاس، چلے جاؤ مشکل کشا کے پاس، مولا کائنات کے پاس دونوں شہزادے آئے، آ کے پیش کرتے ہیں ابا حضور یہ کپڑے آئے ہیں، امی جان نے منگوایا ہے دہلی سے، خیاط لے کے آ گیا ہے، لیکن سرکار مولا کائنات فرماتے بیٹے ماشاءاللہ بڑے اچھے کپڑے ہیں،
रंगीने पहन लो। अब शहजादे फरमाते हैं भैया हसन को हरा चाहिए और हमें सुर्ख चाहिए। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा है। अब मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई सामने आ गई और आप फरमाते हैं कि अब मैं क्या करूं, इस कपड़े का क्या करूं। और मौला तो जानते हैं कि कहां से आया है, वहां से भेजा जाएगा, फिर उसके बाद लिबास का कलर चेंज कराया जाएगा। इसलिए अब क्या किया जाए, आपने फरमाया चले जाओ बड़े मुश्किल कुशा के पास। बड़े मुश्किल कुशा के पास चले जाओ। शहजादे पूछते हैं अब्बा हुजूर मुश्किल कुशा तो आप हैं, ये बड़े मुश्किल कुशा किसको कहते हैं। कहा बेटो अपने नाना के पास चले जाओ। अब नाना के पास शहजादे आए और जैसी आगे पहुंचे नाना ने देखा, नाना तो जान रहे कि जन्नत से लिबास आया हुआ है, लेकिन देखने के साथ सरकार कायनात ने फरमाया बेटो माशाअल्लाह बड़े अच्छे कपड़े हैं, अल्लाह तुम्हें नजर न लगाए किसी की, इस लिबास को जेब तन फरमा लो। शहजादे कहते हैं नाना जान भैया हसन को हरा चाहिए, हमें सुर्ख चाहिए। कहा ये बड़े अच्छे का कलर है, का मगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अच्छा नहीं लग रहा है। बस फौरन आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो लोटा जिससे आप वुज़ू किया करते थे उसमें पानी लिया और शहजादों के कपड़ों को जो लटकाया और एक हाथ से सादा पानी डालना शुरू किया। एक शहजादे के लिबास पे जब डाला तो वो हरा हो गया, दूसरे शहजादे के लिबास पे जब डाला तो वो सुर्ख हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा भी कोई रंगेज है, ऐसी नहीं। पुराने शोरा जो थे, पुराने शोरा जो भी थे वो कहा करते थे अरबी रंग रिवाज से रंगाई गई। सुभान अल्लाह कहते थे नहीं, आप लोगों ने सुना होगा पुराने शोरा से। तो ये अरबी रंगरेज हैं, ऐसा रंगते हैं कि सादे पानी से कलर बना देते हैं। बहरहाल एक कलर हरा हुआ, एक कलर सुर्ख हुआ। अब दोनों शहजादे बड़े खुश हो गए। शहजादों ने लिया सेवेतन फरमाया, आ गए घर में, रुखसती हो गई। आगे वाक़या बताना चाहता हूँ, रुस्मों बुलाना चाहता हूँ। सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले चले। शहजादे भी साथ में चल रहे हैं, उंगलियां शहजादों की पकड़े हुए हैं। आका चलते चलते इमाम हसन और हुसैन फरमाते हैं नाना जान सब तो अपनी अपनी सवारियों पे हैं, हम पैदल चल रहे हैं। अच्छा तो अब ईमानदारी के साथ बताइएगा, जब शहजादों ने कहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी उसवा मंगवा लेना चाहिए और उस पर शहजादों को बिठा देते। अच्छा अगर उसवा ही नहीं तो एक ऊँटनी और थी उसको बुला लेते। अच्छा अगर वो भी नहीं, घोड़े की फरमाइश हो जाती तो वो घोड़ा जिस पर अली कायनात सवार हुआ करते थे, जिसको लोगों ने दुलदुल कहा, उसको मंगवा लेते। अच्छा वो भी नहीं तो जिससे हजरत अब्बास अलमबरदार मैदान करबला में आए थे उसको मंगवा लेते, मुर्तजस को। नहीं तो इमाम हुसैन जिस पर सवार होने वाले थे करबला के मैदान में, उस घोड़े जुलजना को मंगवा लेते। नहीं हजरत अली अकबर जिस घोड़े पर सवार होने वाले थे उसका नाम था उकाब, उसको मंगवा लेते। क्योंकि ये पहले से तमाम सवारियां आपके यहाँ मौजूद थी, सरकार इनकी खिदमत कर रहे थे। ये तमाम सवारियां तो आपके घर में थी, कोई भी सवारी मंगवा लेते। खैरों शहजादे भी लाते हैं। अच्छा नहीं मंगवाते, अगर वक्त नहीं था तो यूं भी सरकार कह सकते थे अपने किसी सहाबा से, ऐ मेरे साहब अपने बच्चे को नीचे उतारो, मेरे शहजादों को ऊपर बिठाओ। अगर सुन्नी हो तो ईमान यही होना चाहिए कि वो सहाबा जैसी सरकार से सुनते। कसम खुदा की ये मेरा ईमान है कि अपने बच्चे को उतारते नहीं, घसीट के नीचे करते और शहजादों को उठा के अपने अपनी सवारियों को बिठा देते। लेकिन सरकार ने किसी सहाबी से भी नहीं कहा। अब क्या हुआ तो आप जानते हैं कि सरकार खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद आप ऊंट की सूरत में आ जाते हैं और शहजादों से कहते हैं बैठो सवारी तुम्हारी हाजिर है। शहजादे सवार हो गए और उसके बाद चलने लगे तो फिर शहजादे कहते हैं नाना जान सब जितने सवार हैं उन्होंने अपनी अपनी सवारियों की लगाम पकड़ रखी है, मेरे पास कोई लगाम नहीं है, मैं कहीं गिर न जाऊं। आका ने फरमाया एक काम करो, मेरी आधी जुल्फों को बेटा हसन तुम पकड़ लो, आधी जुल्फों को बेटा हुसैन तुम पकड़ लो। अब यहाँ से ये फैसला लेना
वसल्लम की जुल्फ मुअम्बर कितनी बड़ी थी या नहीं थी? अगर छोटी छोटी होती तो आगे वाला शहजादा तो पकड़ सकता था, पीछे वाला नहीं पकड़ सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस रिवायत से ये पता चला कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुअम्बर बड़ी लंबी लंबी थी। आपने हज़रत बाबा मुस्लिम साहब और हज़रत बाबा कासिम अली शाह साहब का जो मौका शरीफ देखा होगा, उसमें भी आप हज़रात ने बाल हज़रात के देखे। अच्छा, अब बुखारी अगर आ जाए तो बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक आपके शानों तक हुआ करते थे। फिर बाद में लोगों ने लो तक आ जाते थे, तो कुछ लोगों ने कान के लो बना लिया। तो बड़ा लंबा बाल होना चाहिए, शानों तक होना चाहिए, इतना तो बड़ा बुखारी ने लिख दिया है। तो अब इमाम बुखारी ने अगर लिखा तो इतना ही मान लिया जाए। शहजादों ने आगे पीछे पकड़ा और उसके बाद सरकार ने चलना शुरू किया। अब शहजादे फिर कहते हैं, नाना जान, तमाम लोगों की सवारियां जब चल रही है तो वो हिल रही हैं, लेकिन मेरी सवारी हरकत नहीं कर रही है। आका ने ऊँटों की तरह हिल हिल के चलना शुरू कर दिया। जब हिल हिल के चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चले थे, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुअम्बर को अपनी तरफ थोड़ा सा हरकत दिया। जैसी हरकत दिया, सरकार इधर मुड़ गए। उसके बाद इमाम हुसैन ने जब इस तरफ खींचा तो सरकार इधर मुड़ गए। ये मसला क्या हो रहा है आका, ये आप क्या कर रहे हैं? रहमत आलम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो ये वो शहजादे हैं जिनके इशारे पर नबूवत भी चलती हुई नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और से मुक़द्दस, और से मुक़द्दस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिस तरफ जा रहे हैं शहजादे क्या बात है। ऐसे में जब सरकार चलने लगे फिर इस हालत में शहजादे फिर कहते हैं, नाना जान, सबकी सवारियाँ बोल रही हैं, मेरी सवारी बोल नहीं रही है। मेरे आका ने बोलना शुरू किया। ऊँट जो है वो अरबी में उसका तर्जुमा किया गया कि वो बोलता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। या रसूल अल्लाह, ये आप कह रहे हैं अल्लाह माफ़ी? शहजादे चलाते चले जा रहे हैं, सरकार अल्लाह को कहते चले जा रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ गए और आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है ज़बान रिसालत को खामोश कर लीजिए। सरकार कहते हैं, क्यों? मेरे शहजादों की मर्जी है कि मैं बोलूँ। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आपने 72 मरतबा अल्लाह कहा है, इसके बदले में रब्बे कायनात ने जहन्नम का 3 हिस्सा बुझा दिया है। अगर आपने आगे भी कहा तो पूरी जहन्नम को अल्लाह ताला बुझा देगा, खामोश कर देगा। फिर आपके और आपके आल के दुश्मन कहाँ रखे जाएंगे? फिर आपके आल के दुश्मन यहाँ तक अब कह दूंगा कि आपके हजरत बाबा सैयद कासिम अली शाह साहब अलैहि रिज़वान के दुश्मन कहाँ रखे जाएंगे? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग ये समझते हैं कि ये तो जमीन के नीचे है, जैसे चाहे हम दुश्मनी कर लें, चाहे जबान से कर लें, चाहे हरकत से कर लें, चाहे चाल से कर लें। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, ये वो जातें हैं जो जमीन के अंदर हैं तब भी खबर रखती हैं, जमीन के ऊपर हैं तब भी खबर रखते हैं। जहाँ जहाँ हूँ ये वहीं से खबर रखते हैं, इसलिए कि उसके शहजादे हैं, उसके शहजादे हैं जो फर्श पर बैठ कर अर्श की खबर रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस शहजादे की बारगाह में जब भी आया जाए, बड़े अदब व एहतराम के साथ आया जाए। अदब व एहतराम का मामला चलते चलते दरूद पाक सुना दें आप हज़रात, तो मैं आगे आप हज़रात के सामने वाक़या पेश करूँ। और वो एक ये है अदब व एहतराम, और साथ ही साथ अभी हमारे कारी साहब तो अभी तौबतन नसूहा के ताल्लुक़ से आयत मुबारका जो है उसके हवाले से आप खिताब फरमा रहे थे।